गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जनरल कैरेक्टर्स किए फाइलम एनालिडा के। आज करेंगे हम क्लासिफिकेशन। सो अगर आपने कल ध्यान से लेक्चर क्लास अटेंड करी होगी तो आज क्लासिफिकेशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो बिफोर वी बिगिन एक रिकैपिचुलेशन हो जाएगा कल का। कल हमने लास्ट में जो किया था जिस्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक का वो ये था कि annelids they show metameric segmentation. शीलोम इज शाइजोसिलिक, राइट। कल मैंने बताया था जो मेसोडर्म से जो कैविटी बनती है या ट्रू सीलोम बनता है उसको हम शीजोसिलोम कहते हैं। बॉडी की जो है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। both the type of muscles are there, circular as well as longitudinal in case of annelidans. Well developed circulatory system is present. Closed type of circulatory system is present, particularly in oligochaeta, polychaeta. And nephridia is their excretory unit. Circumpharyngeal nerve ring is present in annelids, and development is direct or indirect. If it is indirect, they show trochophore larva. करेक्ट। दिस इज ऑल जस्ट दिस इज ये जिस्ट जो है कल जो हमने किया था। तो आज हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा। ठीक है। तो कल हमने ये भी बताया था कि इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो या तो पैरापोडिया है, जैसे कि नेरस में कल दिखाया था हमने, अगर या फिर क्या है कि इनकी स्किन में एक हार्ड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं सीटा, या अगर प्लूरल हो तो सीटे, राइट। ये सीटे जो है डीपली बॉडी में एम्बेडेड होते। कल मैंने दिखाया था कि इस तरह से एस शेप्ड सीटे होते हैं वो। कल मैंने डायग्राम भी दिखाया था इस तरह, right. This is the nodulus portion, this is the base portion, and this is the neck portion, and it is this portion जो कि body wall में से protrude out होता है। So based on the setae also known as chaeta और या chaetae, phylum Annelida has been different classes of Annelida जो है वो depending on the presence of setae जो है वो divided है। जैसे कि polychaeta, first class is, this is class poly means many, chaeta means setae, right. So they polychaetes, they possess many setae. Next is oligo. Next class is oligochaeta. Oligo means few, chaeta means setae, so they have few setae. Next is Hirudinea, they do not show any setae. Next class is Archaeannelida. Archae means ancient, correct, and Annelida means annelidan. So if you see, basically this Annelida is divided into 4 classes. Polychaeta having many setae, oligochaeta having few setae, Hirudinea, here they do not have setae, they have sucker as their locomotory organs. And now last is Archaeannelida, that means they consist of ancient annelids, correct. So now these 4 classes based on different characters. Which are those characters? Based on habitat, cephalization, locomotory organs, clitellum, segmentation, and reproduction and development, they have been classified accordingly. तो हम ये जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे to differentiate between various classes. So first we'll take habitat, right. If you see polychaetes, if you see, they are excuse me, they are exclusively marine. पॉलीकिड्स, जैसे कि कल भी मैंने तुम्हें दिखाया था पॉलीकिड्स के डायग्राम, आज भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, जैसे ये एफ्रोडाइट है।
एफ्रोडाइट क्या है? मरीन तो है, बट इफ यू सी इट इज फॉसोरियल, यानी कि ये फॉसोरियल मीन्स बर्रोइंग फॉर्म है। ये देखो कीटोप्टेरिस, दिस इज ऑल्सो पॉलीकीट, बट दिस इज ट्यूबिकुलस। मरीन तो है, बट इट लिव्स, जस्ट सी इट लिव्स इन these tubes. So and this is the animal. Can you see? This is the animal. Another example is neris. If you see, this is neris. ये कहाँ रहता है? It live under the stones. Correct. So if you see, although the polychaetes are marine, but in marine water also they can be tuberculous, they can be fossorial, or they may be living under stones. Correct. Now comes oligochaeta. In case of oligochaeta, the habitat is mostly terrestrial. जैसे कि अर्थ फॉर्म जो है वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ओलिगोकीटा का, जबकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं ओलिगोकीट्स। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि इन केस ऑफ यू नो, इफ यू सी एलोजोमा, एलोजोमा इज एन ओलिगोकीट। ये ओलिगोकीटा है, बट ये फ्रेश वाटर फॉर्म है। ये देखो, ये एकदम माइक्रोस्कोपिक है, पर आप इसकी बॉडी में देखो इस तरह से सेगमेंटेशन है, और ये क्लास ओलिगोकीटा को बिलोंग करता है। सेम वे देखो ट्यूबिफेक्स, ट्यूबिफेक्स भी जो है फ्रेश वाटर फॉर्म ओलिगोकीट है। ये देखो इसकी बॉडी पर भी सेगमेंटेशन है, ये हेड है, ये टेल रीजन है। करेक्ट। सो in case of oligoketa, they can be terrestrial, or like earthworm is example of terrestrial oligokete, और fresh water में मैंने आपको बता ही दिया एलोजोमा एंड ट्यूबिफेक्स। नेक्स्ट क्लास इज क्लास हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में जो हैबिटेट है, इफ़ यू सी, इट इज़ मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, ये लीच है। लीच जो है फ्रेश वाटर लिविंग है, और समटाइम्स वी गेट टू सी मरीन फॉर्म ऑल्सो। कल मैंने आपको पोंटोपडेला दिखाया था ना, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ कि जस्ट सी, दिस इज पोंटोपडेला, राइट। सो दिस इज मरीन फॉर्म ऑफ क्लास हिरुडिनिया। करेक्ट। नाउ next class is Archaeannelida. As the name indicate, it includes ancient annelidan और primitive annelidan. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है ये है पॉलीगॉर्डियस है। करेक्ट। सो दे आर, इनका हैबिटेट क्या है? दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। करेक्ट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफ यू सी दैट polychaetes, they are exclusively marine. Archaeannelids, they are also exclusively marine, जबकि जो ओलिगोकीट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म भी हो सकते हैं। हिरुडिनिया भी जो है दे इंक्लूड फ्रेश वाटर फॉर्म एंड मरीन, दे डू नॉट हैव एनी टेरेस्ट्रियल फॉर्म। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम देखेंगे सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो अब आप देखो ये नेरिस है, तो नेरिस में तो वेल डेवलप्ड हेड दिखाई दे रहे हैं ना। अब आप देखो, ये देखो क्लियरली, इसमें प्रोस्टोमियल पैल्प भी है, टेंटेकल भी है। तो पॉलीकीट में इफ यू सी क्या है? डिस्टिंक्ट हेड है। वी कैन मेक आउट दैट दिस इज द एंटीरियर पोर्शन और डिस्टिंक्ट हेड। इसमें आप देखो ये प्रोस्टोमियल पैल्प भी है, प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स भी है। करेक्ट। आइज भी है, यहाँ पे आप देखो आइज दिखा रखी है ना। वेयर एज अब वी कम टू ओलिगोकीट। ओलिगोकीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है क्या है? अर्थवर्म है। हेयर इफ आई शो यू, जस्ट सी, कैन यू सी हेयर ऑल्सो अर्थवर्म में भी एक वेल, earthworm has got anterior end which has got mouth, peristomium or prostomium. Correct. So if you see here also cephalization is there, head is there with eyes. Now we come to
नेक्स्ट क्लास दैट इज हिरुडिनिया. हिरुडिनिया में आप देखो लीच देखो. कैन यू सी लीच? आप कैन यू मेक आउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड? नो, you cannot make out. So we can say that there is no cephalization. Formation of head is not there. Now we come to polygordius or archaeannelid. Here you will see that distinct head is there. So here cephalization is there. सो अगर आप दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें सेफलाइजेशन, तो केवल हिरुडीनिया में सेफलाइजेशन नहीं है, बाकी सब में सेफलाइजेशन है. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लोकोमोटरी ऑर्गन. नेरिस में तो पॉलीकीट में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? पैरापोडिया. ये जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पैरापोडिया. और पैरापोडिया के दे आर ऑल्सो रिच इन सीटे. राइट. सो देर आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो है न्यूमरस, बिकॉज पैरापोडिया ऑल्सो एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन. और पैरापोडिया के ऊपर भी दे आर रिच इन सीटे. करेक्ट. हेयर नाउ वी कम टू ओलिगोकीटा. ओलिगोकीटा में जो है लोकोमोशन जो है वेल डेवलप्ड है because of the presence of muscles, longitudinal muscles और circular muscles है. with the help of this जो peristaltic movement जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा उनकी बॉडी पर डीपली सीटेड सीटें भी हैं जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स हिरुडीनिया. हिरुडीनिया में क्या है? सक्कर्स है. तुम्हें पता है ना, इसके एंटीरियर एंड पर सक्कर्स है, एंड दीज सक्कर्स दे हेल्प इन लोकोमोशन. यहाँ पर सीटे या पैरापोडिया एब्सेंट हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट. एंड देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन अबाउट पॉलीगॉर्डियस और आर्कियानेलिडा अबाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन. नेक्स्ट इज क्लाइटेलम. राइट. नाउ इफ यू सी क्लाइटेलम, आई जस्ट शो यू वन डायग्राम. जैसे ये अर्थवॉर्म का है. अर्थवॉर्म में आप देखो 14, 15, 16 सेगमेंट. इफ यू सी they are not divided. there is a thick band like structure जिसको कहते हैं क्लाइटेलम. और क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है? that it give rise to cocoon. और कोकून के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो इफ यू सी, you now understood what is clitellum. if you see in case of polygita there is no clitellum. देखो आपको मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है. नेरिस में कहीं क्लाइटेलम नजर आ रहा है? नो, देर इज नो क्लाइटेलम. नेक्स्ट इन केस ऑफ ओलिकीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अर्थफॉर्म में क्लाइटेलम है. सो इफ यू सी क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ओलिगोकीटा. नाउ वी कम टू हिरुडीनिया. हिरुडीनिया में क्लाइटेलम प्रेजेंट तो है बट परमानेंट नहीं है, केवल ब्रीडिंग सीजन में जो है क्लाइटेलम डेवलप होता है. राइट. इन केस ऑफ आर्कियानेलिडा क्लाइटेलम इज एब्सेंट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेगमेंटेशन. अब आप देखो पॉलीकीटा में नेरिस की बॉडी सेगमेंटेड है. यस. सो इफ यू सी हेयर वेल डेवलप्ड सेगमेंटेशन इज देयर एंड द नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर फिक्स्ड. राइट. सो एंड दीज सेगमेंट्स आर नॉट फर्दर, जैसे ये एक सेगमेंट है, ये फर्दर जो है सब डिवाइडेड नहीं है. सो इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ पॉलीकीटा. नाउ वी कम टू ओलिगोकीटा. ओलिगोकीटा में अर्थवर्म, इफ यू सी हेयर ऑल्सो सेगमेंट्स आर देयर बट देयर नंबर वेरीज. जैसे 100 से 120 तक, ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है. जैसे यहाँ पर फिक्स्ड था, यहाँ पर सेगमेंट्स नंबर जो है फिक्स्ड नहीं है. दे वेरी अराउंड 100 to 120 आर देयर. एंड हेयर ऑल्सो जो सेगमेंट है दे आर नॉट डिवाइडेड. कैन यू सी ओनली बिटवीन टू एन्यूलाई ओनली वन सेगमेंट इज प्रेजेंट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट दैट इज हिरुडीनिया. ओवर हेयर इफ आई शो यू, जस्ट सी हिरुडीनिया में क्या होता है. आई जस्ट ड्रॉ. जैसे वैसे तो सेगमेंट्स फिक्स्ड हैं, 33 सेगमेंट्स होते हैं हिरुडीनिया में. जैसे ये साकर है, but just suppose ये each segment is again further divided into many sub segments or many segments are there. So because of these annuli, यानी कि मेजर 33 डिवीजन के बाद भी they are further subdivided into
segments. Here if you see, in case of Polygordius or class Archaeannelida, if you see, segmentation is not clear, only faint lines are there. So you can say in the name of segmentation, only faint lines are there. Now we come to the last point, that is reproduction and development. If you see, in case of Nereis or in case of Polychaeta, कल भी हम जब कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे मैंने बताया था कि इसमें इफ यू सी दैट दिस polychaetes are unisexual, right, and gonads are also temporary. And fertilization is external. You can note down these characters. Fertilization is external and development is indirect. They undergo a larval stage, that is ट्रोकोफोर लार्वा आता है इनकी लाइफ हिस्ट्री में. और मैंने कल दिखाया था, एक तो मैं सिलिस दिखाया था, सिलिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. यानी कि जो क्लास पॉलीकीटा है उसमें सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गोनैड्स जो है टेम्प्रेरी फॉर्म होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. नाउ वी कम टू ओलिगोकीटा. ओलिगोकीटा में जो है दे आर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या? हर्माफ्रोडाइट. यानी कि एक ही सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, बट जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता. क्यों? बिकॉज जो अर्थवॉर्म है या ओलिगोकीट्स हैं वो प्रोटेंड्रस हैं. प्रोटेंड्रस का मतलब क्या है कि मेल गैमेट्स जो है वो पहले डेवलप कर जाते हैं. फिर मैंने अभी बताया था कि क्लाइटेलम से जो है डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है. कहाँ होता है? ऊथिका में डेवलपमेंट होता है. और ऊथिका से क्या बनता है? कोकून बनता है. और ऊथिका कौन सिक्रीट करता है? क्लाइटेलम सिक्रीट करता है. अभी दिखाया था ना मैंने, क्लाइटेलम जो है ऊथिका सिक्रीट करते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और कोकून बनाता है. करेक्ट. नाउ वी कम टू हिरुडिनिया. हिरुडिनिया क्लास में क्या होता है? हेयर ऑल्सो दे आर बाइसेक्सुअल. ये भी प्रोटेंड्रस हैं अर्थफॉर्म की तरह या ओलिगोकीट्स की तरह. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट भी जो है वो डायरेक्ट होता है. और डेवलपमेंट जो है किस में होता है? ऊथिका में ही होता है. नाउ वी कम टू द लास्ट क्लास, दैट इज आर्कियानिलिडा. आर्कियानिलिडा या पॉलीगॉर्डियस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे आर यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स. इसके काफ़ी कैरेक्टर्स जो हैं वो पॉलीकीट से मिलते हैं और न्यूमरस गोनैड्स होती हैं. जबकि आप अर्थवर्म वगैरह में देखोगे वन पेयर ऑफ testes, one pair of ovaries there, two pair of testes are there, but here numerous gonads are there and they also undergo indirect development. That means they also have a larval stage which we call as trochophore larva. Correct. So एक बार आप फिर से देखो कि जो फाइलम एनिलिडा है वो इस तरह से 4 क्लासेस में डिवाइडेड है: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया एंड आर्कियानिलिडा. और हमने इसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर ही लिए. बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स इफ यू सी, फाइलम एनिलिडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. करेक्ट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास.